Hello students, good morning. Today the last topic of the village at Palampur, which is belong from class 9th and subject is economics. Today's topic is an example of small scale manufacturing in Palampur. Means what type of small manufacturing done by the people of Palampur. At present, less than 50 people engaged in manufacturing in Palampur, unlike manufacturing that takes place in big factories in the town and cities. Manufacturing in Palampur involve very simple production method. पालमपुर के पीपल बड़े छोटे छोटे कामों में बिजी रहते थे और वो ऐसे भी नहीं है कि दैट आर यूजलेस manufacturing, but they are useless for the people who live in Palampur or nearby the towns. They are carried out most at home or the field with the help of family labor, really the labor married hard. अब एक छोटा सा स्मॉल एग्जाम्पल है यहाँ पे. मिस्री लाल हैज़ परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन run on electricity and has set it up on his field. मिस्री लाल एक काल्पनिक नेम है. उन्होंने शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदा है, जिसे क्रेशर भी कह सकते हैं, और जो रन करती है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी. उन्होंने अपने फील्ड एरिया में लगा रखा है, खेतों के पास. शुगर केन क्रशिंग वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स. पहले ये बुलक्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्स या बैलों की सहायता से करा जाता था. बट पीपल प्रीफर टू डू बाय मशीन दीज डेज. लेकिन अब ये मशीन के थ्रू होने लगा है. मिस्री लाल आल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर एंड प्रोसेस इनटू जागरी. द जागरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर एट शाहपुर. इन द प्रोसेस मिस्री लाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट. अब क्रेशर मशीन जब मिस्री लाल ने परचेज किया तो ही परचेज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड ही मेड दैट शुगर केन आफ्टर क्रशिंग द जॉगरी. जॉगरी मीन्स गुड़. आई हैव टेल यू अर्लियर गुड़. और उस जॉगरी को वो शाहपुर मार्केट में बेच देता है. इस तरह से मिस्री लाल छोटा छोटा अपना प्रॉफिट अर्न करता है. अब लर्न यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं. हाँ, सो वी आर टेलिंग अबाउट दैट व्हाट कैपिटल डिड मिस्री लाल नीड टू सेट अप हिज जॉगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. किस तरह की फिक्स्ड कैपिटल मीन्स ही वांट टू फिक्स द क्रशर मशीन, दैट इज known as fixed capital. Who provided labor in this case? Definitely the people who have landless or small scale farmers. Can you guess why Misri Lal is unable to increase his profit? Because he is also a small scale farmer and he not purchase the big machines, that he is not able to enable more profit. Fourth, could you think of any season why he might face a loss? Could you think of any reason when he might face loss? कब वह लॉस में हो सकता है, उसके रीज़न क्या है. व्हेन द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लेस और द मानसून और द प्रोडक्शन गोज डाउन, सो व्हेन ही बिकम एन लॉस. व्हाई डज मिस्री लाल सेल हिज जागरी टू ट्रेडर इन शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेज? बिकॉज ही वांट टू सेल हिज जॉगरी इन शाहपुर because he get collected money, इकट्ठा पैसा पा जाता है, and as well as especially when he sell in the village area, the people of village area not purchase
huge amount of job, so he sell out the trader. Next, shopkeeper of Palampur. Shopkeeper of Palampur. People involved in the trade exchange goods are not many in Palampur. The trader of Palampur and shopkeeper who buy various goods from wholesale market in cities and sell them in village. Especially shopkeeper purchase the goods or things from the wholesaler, and after that shopkeeper, or you can say they are retailer also, और वो पालमपुर विलेज के लोगों को फुटकर रिटेल में सेल करते थे. यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर इन विलेज selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candle, notebook, pen, pencil, even some clothes. A few of families whose houses are close to the bus stand have used a part of space, open a small shop. They sell eatables. ये चीज़ों को वो लोग सेल आउट करते हैं, ख़ास तौर से जिनके घर बस स्टॉप के पास है या नियर द मार्केट है. देयर इज वन स्टोरी अगेन यू आर सीइंग हियर, लुकिंग हियर. करीम हैज़ ओपनड ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज. करीम ने कंप्यूटर क्लास सेंटर गांव में खोला. इन रिसेंट ईयर a large number of students have been attending college in शाहपुर टाउन. अभी पिछले साल ही बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि शाहपुर के कॉलेज में ज्वाइन किया था. करीम फाउंड दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लास. करीम ने देखा कि बहुत सारे गांव के बच्चे कंप्यूटर क्लास अटेंड कर रहे हैं. देयर वेयर 2 women in the village who had a degree in computer. वहाँ पे कुछ महिलाएं भी थीं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री भी थी. ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम. उसने उन महिलाओं को नौकरी देने की सोचा. ही बॉट कंप्यूटर एंड सेट अप द क्लासेज इन फ्रंट रूम एंड देयर हाउस ओवरलुकिंग मार्केट. हाई स्कूल स्टूडेंट हैव स्टार्टेड अटेंडिंग द देम इन गुड नंबर. अब हाई स्कूल के बच्चे वहाँ पे स्टार्ट हो गए. यहाँ पे लेट्स डिस्कस इन व्हाट वे करीम कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम द मिस्री लाल. Karim and Misri Lal both are the gaining small type of input, but Karim set up giving the employment educated or skilled person employment, and Misri Lal provide employment also, but he provide unskilled person. Means who operated the computer? Computer कौन चला सकेगा? The person who have knowledge. और क्रशिंग में नॉलेज की उतनी ज़रूरत नहीं है, बस उसको एक बार देखा अब स्टार्ट हो गए. लेबर कह सकते हो. सेकेंड, वाई डिड समवन स्टार्ट कंप्यूटर सेंटर अर्लियर. पहले इसके कंप्यूटर सेंटर क्यों नहीं खोला गया? बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग स्पेशली इन टाउन एरिया. टाउन एरिया में इसके पहले बच्चे नहीं पढ़ते थे. सो दैट नाउ. फोर्थ, ट्रांसपोर्ट फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. There are a variety of vehicle on the road connecting पालमपुर to रानीगंज. बहुत सारे व्हीकल्स थे, जैसे रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स and people driving a traditional bullock cart. And bogies are people in the transport services. बुलक कार्ट बैलगाड़ी और बोगीज जो भैंसा गाड़ी होती है उसे बोलते हैं. ट्रांसपोर्ट के लिए उसका भी इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली इन रूरल एरिया. द फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फेरी वाले पीपल से थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे गुड्स को सेल आउट करने के लिए. एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट. और उसके लिए पैसे मिलते थे. द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ गॉन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर. ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे लोग ड्राइवरिंग का काम करते थे, या मान लो किसी ने अपना खुद का परचेज किया उसका काम करते थे. अब यहाँ देयर इज अगेन आल्सो ए स्मॉल स्टोरी. किशोरा इज फार्म लेबर like other such laborers. Kishore found it difficult to meet his family need from the wage that he received. जो पैसा उसने रिसीव किया था वो उसको दिक्कत हो रही थी
वेज जो मिलती थी उसको पाने। अ फ्यू ईयर बैक किशोर टूक ए लोन फ्रॉम द बैंक, कुछ साल पहले किशोर ने बैंक से लोन लिया। दिस वाज अंडर गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वाज गिविंग चीप लोन टू पुअर लेडीज हाउस होल्ड। किशोर ब्रॉट ए बफेलो विद दिस मनी, ही नाउ सेल हिज बफेलो मिल्क। किशोर ने क्या किया, बैंक से लोन लेकर के उसने एक बफेलो खरीदी और बफेलो का मिल्क डेयरी में सेल आउट करने लगा। फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट, उसने एक लकड़ी की गाड़ी बफेलो के साथ लगा दिया। एंड यूजेड टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम, ऑफ बफेलो से ही उसने बहुत सारे आइटम को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने लगा। वंस अ वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर। वीक में एक बार वह पॉटर के लिए गंगा वैली के पास जाता, वहाँ से मिट्टी ले आता था। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद ए लोड ऑफ जागरी और अदर कमोडिटीज। ही एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, हर महीने उसको काम भी कुछ न कुछ मिलने लगा। एज ए रिजल्ट किशोर इज एबल टू अर्न मोर दैन वाट ही यूज टू डू सम ईयर बैक। अब किशोर पहले से कुछ ज़्यादा पाने लगा, कुछ ज़्यादा अर्न करने लगा। इस तरह से किशोर ने जो लोन लिया था वो भी पेमेंट कर सका और साथ ही साथ उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है, डेली नीड्स हैं, वो स्टार्ट हो गया। लेट्स डिस्कस व्हाट इज किशोर फिक्स्ड कैपिटल। किशोर की फिक्स्ड कैपिटल क्या थी? द बफेलो व्हाट ही परचेज। व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल? यस, उसका जो कैपिटल था वर्किंग कैपिटल था। इन हाउ बफेलो के माध्यम से वो कैरी ऑन करता था, ट्रांसपोर्ट करता था। एंड ही गेटिंग मिल्क फ्रॉम दैट विच इज सेल्ड नियर द डेयरी। थर्ड, इन हाउ मेनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज किशोर इन्वॉल्व। किशोर किन प्रोडक्शन एक्टिविटी में? पहले डेयरी फार्मिंग, आफ्टर दैट डेयरी फार्मिंग के बाद आप देखते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे वो भी था, दोनों में था। वुड यू से दैट किशोर हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड्स इन पालमपुर। क्या आप कह सकते हैं कि किशोर बेनिफिट में था, पालमपुर की बेहतर रोड थी? यस, वी कैन से दैट किशोर बेनिफिटेड फ्रॉम पालमपुर रोड। सो स्टूडेंट्स, I think you have read this chapter carefully and understood. Okay, so we will finish our first chapter that belongs from economics. Students, you need to read carefully this chapter, try to give the answer. If still you face any problem, then try to contact me and definitely I sort out your problems what you have. Thank you.